ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ CS ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੈ C++ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟਸ ਇਨ C++। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਓਪਸ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ। ਕਲਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ, ਅਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ, ਕਿ ਐਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਸੁਜੈਸਟ ਯੂਸਸ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਆਬਜੈਕਟਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਟੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਡ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟਸ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਹੈ, ਹਾਈਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਡਾਟਾ ਹਾਈਡਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਹਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਫਰੋਮ ਆਊਟਸਾਈਡ ਅਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਨੋਨ ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਾਟਾ ਹਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਥਰੂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ? ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਬਾਕੀਆਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਉਹ ਕਲਾਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈਡ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਊਪਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਫਰਦਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਊਪਸ ਦਾ? ਇਜ਼ ਟੂ ਬਾਈਂਡ ਟੁਗੈਦਰ, ਬਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਟੁਗੈਦਰ ਕਿਹਨੂੰ? ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਟੈਕਸ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ C ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰਸ। ਪਰ ਕਲਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰਸ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰਸ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ID ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਲਾਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰਸ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਥਰੂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਫ ਦੈਟ ਕਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਓਪਰੇਟ ਔਨ ਦੈਮ। ਓਪਰੇਟ ਔਨ ਦੈਮ ਮਤਲਬ
फंक्शन जड़े ए डाटा के उपर आप ऑपरेट करने हैं, ठीक है। सो दैट नो अदर पार्ट ऑफ द कोड कैन एक्सैस दिस डाटा एक्सैप्ट दैट फंक्शन, ठीक है। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि कोई दूसरा फंक्शन किसी होर क्लास का फंक्शन, ठीक है, जड़ा क्लास का इस क्लास का मैंबर नहीं हैगा, ठीक है, वो नहीं एक्सैस कर सकता। क्लीयर। ऑब्जैक्ट उस क्लास का ही एक्सैस करेगा जिस क्लास का डाटा है, जिस क्लास का मैंबर फंक्शन है, आउटसाइड कोई होर नहीं एक्सैस कर सकता। हुण ये जिहड़े बेसिक ऊप्स के कंसैप्ट ने, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ऑब्जैक्ट क्लास, अबस्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है जी, इन्होंने आप देखेंगे वन बाय वन। हुण ये आप देखिया सीगा क्लास, क्लास आप देख लीए। क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, ठीक है, जिन्होंने यूज़ करके यूजर अपन टाइप्स क्रिएट कर सकता। जिमें आप लिख लें क्लास स्टूडेंट, ठीक है, ये आप इत्थे कुछ फंक्शन डिफाइन करते, कुछ डाटा मैंबरस डिफाइन करते, जिमें नेम, एड्रैस, क्लास, ठीक है। इत्थे आप इनपुट डाटा नाम का एक फंक्शन बना लिया, एक आप प्रिंट डाटा का बना लिया, एक इनपुट डाटा का बना लिया, ठीक है। यह क्लास की ग्रुप बन गई ना, मैंबर डाटा मैंबर की तो मैंबर फंक्शन की ग्रुप बन गया, एक इन्हें ग्रुपिंग कर ली, ठीक है। हुण यह जिहड़ा आपां डाटा इत्थे डिक्लेयर किया है, इनू सिर्फ इन्हां फंक्शनस के थ्रू ही असैस किया जा सकता है, ठीक है, डायरैक्टली आप नहीं असैस कर सकते। हुण इन्हां फंक्शनस नूं ए इनपुट वाला फंक्शन है जां प्रिंट वाला फंक्शन है, इन्हां नूं कॉल आप किवें करांगे, ठीक है। ये लिए आप पहला स्टूडेंट जिहड़ी अपनी क्लास है इहदा एक ऑब्जैक्ट क्रिएट करना पेगा, ठीक है। जिवें S1 आप क्रिएट कर लिया, S2 आप क्रिएट कर लिया, ठीक है। हुण S1 डॉट इनपुट इदा आप कॉल करांगे, ठीक है, तो ये क्यों नहीं इनू कॉल हो जानी है। S1 का डाटा स्टूडेंट 1 का डाटा एंटर करांगे, फिर S2 डॉट इनपुट, फिर S2 के नाल इनू कॉल करांगे, S2 का डाटा आप एंटर करांगे। क्लीयर। क्लास की है ग्रुप ऑफ डाटा मैंबरस एंड मैंबर फंक्शन, तो क्लास एक यूजर डिफाइंड टाइप भी है, क्योंकि आप स्टूडेंट के ऑब्जैक्ट बना रहे हैं ना, स्टूडेंट के अगों आप ऑब्जैक्ट बना रहे हैं, वेरीएबल बना रहे हैं, जिवें आप नॉर्मली दूसरी डाटा टाइप्स के बनाने हैं, ठीक है। हुण क्लास नूं ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जैक्ट भी आप कह दिंदे हैं, क्योंकि क्लास तो ही पता लगना कि ऑब्जैक्ट के अंदर की आ रहा है, क्योंकि जो भी आप वेरीएबल्स ने, डाटा मैंबर है, जो भी आप मैंबर फंक्शन ने, वो आप क्लास के अंदर ही डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो ऑब्जैक्ट का वो की बन गया, एक ब्लू प्रिंट बन गया कि ऑब्जैक्ट के अंदर किहड़ियां चीज़ां आ रही हैं, ठीक है। जिवें आप स्टूडेंट 1 आप बनाया सी, ठीक है, क्लास तो ही पता लगना कि ये अंदर एक नेम वेरीएबल आ रहा है, ठीक है, एक रोल नंबर आ रहा है, ठीक है, यह 2 डाटा आ रहे हैं, 2 डाटा मैंबर अगर आप डिक्लेयर किए, तो एक इनपुट फंक्शन आ रहा है, एक अपने कोल प्रिंट नाम का फंक्शन है, प्रिंट डाटा या कुछ भी वो आ रहा है, ठीक है। यह आपको क्लास तो ही पता लगना है कि उस सबजैक्ट के विच किहड़ा डाटा आ रहा है, एक ब्लू प्रिंट आप कह सकते हैं, ठीक है। ओके, हुण एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की है, कार, एक कार नाम की क्लास है, ठीक है। हुण इहदे विच की कह रहा है कि मैनी कार्स विद डिफरेंट नेम्स एंड ब्रांड, ठीक है। हर एक कोई भी कार है वह वखरा नाम होएगा, वखरा ब्रांड होएगा, पर कुछ प्रॉपर्टीज़ ने उन्हां च कॉमन, जिमें 4 व्हील्स है, स्पीड लिमिट है, माइलेज है, ठीक है। यह कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ ने जिहड़ियां सारियां कार शेयर कर सकदियां, ठीक है। सो कार एक कॉमन क्लास होगी, ठीक है जी। तो व्हील्स, स्पीड लिमिट, जी स्पीड लिमिट है, माइलेज है, यह उन्होंने की बन गई प्रॉपर्टीज़, मतलब यह डाटा है, यह आपको इनफॉर्मेशन मिल रही है उसके बारे, डाटा मिल रहा है, ठीक है जी। हुण फिर वही गल है
क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है विच हैज़ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, ठीक है जी। डाटा मेंबर्स आर द डाटा वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस आर द फंक्शंस यूज्ड टू मैनिपुलेट these variables together. These data members and member functions define properties and behavior of the object in a class. ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰਸ ਆਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਟੁਗੈਦਰ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਕੀ ਡਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ, ਮਾਈਲੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸਪੀਡ, ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਡ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਅਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਈਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਈਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਐਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਾਰਾ ਗਾਈਡ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਾਊਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਾਰਾ ਮੈਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਫੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਈਡ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਬਟਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਐਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਟੇਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਈਡ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ऑब्जेक्ट की एक आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद सम करैक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर मतलब जो कोड है, फंक्शन है, करैक्टरिस्टिक्स मतलब एट्रीब्यूट्स, जो डाटा, ठीक है। हुण एग्जाम्पल लिए इत्थे जिहड़ा परसन नाम की एक क्लास बनी हुई है, ठीक है जी, ये तुसीं देख सकते हो क्लास परसन, दो ये एट्रीब्यूट्स आ गए, दो डाटा आ गया ये बारे डाटा वेरीएबल्स, यह की ने डाटा मैंबरस, यह क्लास के डाटा मैंबरस ने, ठीक है, नेम ते आईडी। उस तो बाद पब्लिक सैक्शन के अंदर आपां एक फंक्शन बना लिया गैट डिटेल्स, ये कुछ भी कोड होएगा, कुछ इनपुट करन दा कोड, ठीक है, स्कैन अप स्टेटमेंट्स, सीन स्टेटमेंट्स लगनगियां जो डिटेल्स गैट करनगियां, ठीक है। हुण यह की है क्लास, यह की करता इन्हें ग्रुप करता किनू, डाटा मैंबरस नूं ते मैंबर फंक्शनस नूं, ठीक है, ग्रुप करता। हुण आपां ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਸ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਨੇ, ਐਕਸੈਸ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
एक्सेस स्पैसीफायर यूज़ नहीं किया ये उपर, ठीक है। अगर आप कोई भी यूज़ नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट की होंगे आ प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट अगर हो गए आ मतलब कि इन्हों आउटसाइड आप क्लास एक्सैस नहीं कर सकते, ठीक है। डायरैक्टली एक्सैस नहीं कर सकते, यह सिर्फ थ्रू हो सकते हैं फंक्शन के थ्रू, मैंबर फंक्शन के थ्रू, ठीक है। सेम क्लास का जोड़ा फंक्शन होएगा वो थ्रू एक्सैस हो सकते हैं, ठीक है। इनू आप इतने पब्लिक किया, क्यों किया, साइड तो कॉल किया जा सके। आउटसाइड तो कॉल आप किवें करांगे, किहड़ी आउटसाइड, क्लास आउटसाइड तो आ मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। क्लास अपनी इतने खत्म हो गई है, मेन फंक्शन जो आप कॉल करनी है तो आपां पब्लिक तां चाहिए, तो कॉल भी आप सिर्फ इस क्लास के परसन क्लास के ऑब्जैक्ट क्रिएट करके फिर आप कॉल करांगे, ठीक है। हुण ऑब्जैक्ट इत्थे जिवें P1 बनिया आ, हुण देखो परसन क्लास है, नंबर ऑफ परसन हो सकते हैं, ठीक है। परसन 1 है, परसन 2 3 4 5 किन्ने अप टू n टाइम्स। हुण हर एक परसन का की होएगा, नाम होएगा, ठीक है। जिवें P1 ऑब्जैक्ट है, ये अंदर दोनों डाटा मैंबर्स आए ने, नेम ते ID, ठीक है जी। नाल फंक्शन आए ना गेट डिटेल्स। अगर आप एक होर ऑब्जैक्ट बनाने P2, ठीक है, यदा भी होएगा नेम, यदी भी होएगी ID, ये अंदर भी आएगा फंक्शन गेट डिटेल्स। इदा P3 P4 P5, ठीक है। मतलब ए P1 नू एक ना मैमरी एरिया मिल जाना है, लाइक मैमरी ब्लॉक इशू होए ना, जिहदे नेम है, नेम कितना साइज लै रहा 20 बाइट्स, ID इंट टाइप है 2 बाइट्स, ठीक है। इदा ही फंक्शन नू मैमरी मिलेगी, ठीक है। यह टोटल साइज होएगा इहदा। इस तरह P2 एक पॉइंटर जिहड़ा इनू पॉइंट करेगा, ठीक है। यदि कुछ लोकेशन होएगी स्टार्टिंग तो इनू पॉइंट कर रहा है P1, ठीक है जी। कंटीन्यूस मैमरी मिलेगी इन्हों जिहड़े डाटा मैंबर्स ने। इस तरह नेम नू भी 20 बाइट्स, यदा भी कोई मैमरी लोकेशन होएगी, ठीक है। तो P2 इनू पॉइंट कर रहा होएगा। हुण तुहानूं थोड़ा आइडिया हो गया होना है कि ऑब्जैक्ट की है, उन्होंने किवें मैमरी मिल रही है, ठीक है। मैमरी जो मैमरी रिप्रजेंटेशन की है वो, ठीक है जी। हुण P1 की है, वेरीएबल है किहदा, परसन क्लास का। परसन की एक टाइप है, यूजर डिफाइंड टाइप है। यह टाइप आप किवें डिफाइन की है भी, की होना ये क्लास तो, यह क्लास तो क्रिएट पता लगेगा, ठीक है। ये P1 के अंदर की होना है, P1 कितनी मैमरी लेगा, यह कितों पता लगेगा, P1 की क्लास तो। P1 की क्लास किहड़ी है, परसन। तो परसन जो आप जाके देखा उत्थे आपां नूं पता लगा कि 2 डाटा मैंबर आ, उहदे एक मैंबर फंक्शन है, ठीक है। हो गया क्लीयर। इत्थों आप क्लास तो पता लग जाना कि P1 के अंदर की आ रहा है। तो सो क्लास की होगी एक तरह नाल ऑब्जैक्ट का ब्लू प्रिंट, कि जितों ऑब्जैक्ट बारे आपको यह पता लग जाना कि ऑब्जैक्ट के अंदर किहड़ा डाटा आ रहा है, ठीक है जी। आई होप कि तुहानूं क्लास का कंसैप्ट जिहड़ा वो क्लीयर हो गया होना हुण, ठीक है। हुण एक पॉइंट होर है कि अगर आप देखो इत्थे एक आपां होर एक फंक्शन क्रिएट कर लीए, ठीक है। जिमें सपोज एक आपां F1 नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है, वाइड F1। हुण यह देखो F1 जिहड़ा है नॉन मैंबर फंक्शन है परसन क्लास का, ठीक है। सो F1 फंक्शन कोल कोई भी राइट नहीं हैगा कि परसन क्लास के डाटा मैंबरस नूं असैस कर सके, जिवें नेम नूं ID नूं असैस कर सके, इदां दा कोई राइट नहीं हैगा। सो F1 जिहड़ा वो नहीं असैस कर सकता। इस तरह डाटा की जिहड़ी सिक्योरिटी हुंदी है इनक्रीज़, ठीक है। हुण इनू ही बोलते आ डाटा हाइडिंग, कि जिहड़ा क्लास के अंदर आप डाटा डिफाइन करता है नेम ते ID, ये आउटसाइड ऑफ क्लास हाइड है। आउटसाइड तो इनू कोई असैस नहीं कर सकता, इनू सिर्फ एक्सैस किया जा सकता है किवें,
सिर्फ एज गैट डिटेल्स फंक्शन के थ्रू, क्योंकि यह फंक्शन केड़ा फंक्शन है, परसन क्लास का मैंबर फंक्शन। ठीक है जी। तो यह मैंबर फंक्शन आप कॉल किद्दां करनी है, यूज़ किद्दां करना है, इस क्लास के ऑब्जैक्ट के नाल जिहड़ा इत्थे आपां बनाया होया P1। ठीक है जी। तो इनू आपां किद्दां लिखना है, P1 डॉट गैट डिटेल्स। ठीक है, इदां आपां कॉल कर लैनी है। हो गई जी इन्नी गल क्लीयर। हुण आपां देखते हैं नैक्सट। हाँ जी, नैक्सट जिहड़ा पॉइंट अपना इनकैप्सुलेशन। हुण इनकैप्सुलेशन आपां किवें कह दिंदे हैं कि इनकैप्सुलेशन, हुण तुसीं देखिया होना कि जिहड़ा मैडिसिन वाला कैप्सूल हुंदा है, ठीक है, वो हुंदा की है कि उहदे विच मैडिसिन बाइंड कीती गई हुंदी है। ठीक है, मैडिसिन उहदे च बाइंड कीती गई हुंदी है। इस तरह इनकैप्सुलेशन का कंसैप्ट ऑब्जैक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग च भी होंदा है कि इनकैप्सुलेशन दे विच की हुंदा है कि रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड इनफॉर्मेशन अंडर अ सिंगल यूनिट। ठीक है जी। रैपिंग अप ऑफ कवर कर देना किनू, डाटा नू, इनफॉर्मेशन नू, मैंबर फंक्शनस नू एक ग्रुप दे विच। ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन अचीव किवें कीती जांदी है, विद द यूज़ ऑफ क्लास। इनकैप्सुलेशन नू इंप्लीमेंट आपां किवें करदे हैं, बाय यूजिंग क्लास। क्लास की है, जिद्दां आपां हुणे उपर क्लास देखिए ग्रुप है। ठीक है, उहदे अंदर डाटा मैंबरस भी आ रहे हैं तो फंक्शनस भी आ रहे हैं। ठीक है जी। यह जिहड़ी आपां क्लास उपर देखी है, हुण यह क्लास ने की कीता, इनकैप्सुलेट कीता किनू, डाटा मैंबरस नू ते मैंबर फंक्शनस नू एक ग्रुप दे विच। ठीक है जी। देख लो कि अगर एक कंपनी है, वो अंदर डिफरेंट सैक्शनस ने, डिपार्टमेंट्स ने। ठीक है, लाइक एक अकाउंट सैक्शन है, एक फाइनांस सैक्शन है, एक सेल्स सैक्शन है जिमें। ठीक है, हुण फाइनांस सैक्शन है जिहड़ा वो हैंडल कर रहा है फाइनैंशियल ट्रांजैक्शनस नू, ते ऑल रिकॉर्ड्स जिहड़े हैगे आ वो अपने कोल सेव कर रहा है। ठीक है, फाइनांस दे नाल जो भी रिलेटेड रिकॉर्ड्स ने वो अपने सैक्शन दे विच रख रहा है। ठीक है, इस तरह जिहड़ा सेल्स सैक्शन है वो हैंडल कर रहा है सारियां सेल रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो वो रिकॉर्ड जिन्ने भी है वो अपने कोल रख लिया। ठीक है, एक फाइनांस है, एक सेल्स वाला, यह अपने रिकॉर्ड अपने कोल रख लिया, यह भी अपने कोल रिकॉर्ड जिहड़े हैगे है। ठीक है, सेल्स रिकॉर्ड वो अपने कोल रख लिया। उस तो बाद की हुंदा है कि नाउ देयर मे अराइज अ सिचुएशन वैन फॉर सम रीजन एन ऑफिशियल फ्रॉम फाइनांस सैक्शन। ठीक है, ऑफिशियल मतलब अगर फाइनांस नूं आपां क्लास मान लीए तो ऑफिशियल का मतलब की है कि फाइनांस क्लास का जोड़ा ऑब्जैक्ट होएगा। ठीक है, अगर आपां इनू क्लास मान लीए एक फाइनांस की, तो फाइनांस का जोड़ा एक ऑब्जैक्ट होएगा, उन्होंने अगर कोई डाटा रिक्वायर्ड है। ठीक है, नीड्स ऑल डाटा अबाउट सेल्स इन अ पर्टिकुलर मंथ। ठीक है, एक मंथ दियां सेल्स का रिकॉर्ड चाहिए। इन दिस केस ही इज़ नॉट अलाउड टू डायरैक्टली एक्सैस द डाटा ऑफ सेल्स सैक्शन। ठीक है, और जिमें आपां कंसैप्ट किया डाटा हाइडिंग का, इनकैप्सुलेशन का। ठीक है, अगर इस क्लास का ऑब्जैक्ट है, उन्होंने अगर सैकेंड क्लास का कुछ डाटा चाहिए तो डायरैक्टली नहीं एक्सैस कर सकता, क्योंकि यदा जो डाटा, यदा जो रिकॉर्ड है वो हाइड है फ्रॉम दी आउटसाइड क्लासेस, आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, अगर इस क्लास के ऑब्जैक्ट में कोई डाटा चाहिए है सेल्स क्लास चों या सेल्स सैक्शन चों, तो उन्होंने पहला कॉन्टैक्ट करना पेगा सेल्स क्लास के किसी ऑब्जैक्ट नाल, या आप कह सकते हैं सेल्स क्लास के किसी ऑफिशियल के नाल। ठीक है, सेल्स क्लास के ऑब्जैक्ट के नाल इनू कॉन्टैक्ट करना पेगा। जिवें लिखा, ही विल फर्स्ट हैव टू कॉन्टैक्ट सम अदर ऑफिसर्स इन द सेल्स सैक्शन and then request him to give the particular data. This is what encapsulation is. ठीक है जी। Here the data of sales section and the employees that can manipulate them wrapped under a single name sales section. ये सेल्स सैक्शन का जो भी डाटा है वो ग्रुप किया गया, इनकैप्सुलेट किया गया एक ग्रुप के अंदर, सेल्स सैक्शन के अंदर। ठीक है जी। हुण जदों एक ऑब्जैक्ट दूसरे ऑब्जैक्ट नाल कम्यूनीकेट करेगा, वो किवें करदा है, इन्हां दे विच जो क्लास के मैंबर फंक्शनस हुंदे ने उन्हां दे थ्रू कॉल करदा है।
किसी ऑब्जैक्ट नूं, ठीक है, कि आपां किसी ऑब्जैक्ट का डाटा जिहड़ा किसी दूसरे ऑब्जैक्ट 'च पास कर सकते हैं, ठीक है। यह काम होना किवें आ, फंक्शनस के थ्रू होना है। जिवें इस क्लास दे विच एक मैंबर फंक्शन होएगा, इस क्लास दे विच एक मैंबर फंक्शन होएगा, वो ऑब्जैक्ट के नाल इदां कम्यूनीकेट करनगे, ठीक है। यह किवें अचीव होएगा आपां देखांगे प्रोग्राम एग्जाम्पल इन्हां दी भी। आई होप कि तुहानूं इनकैप्सुलेशन का बेसिक की कंसैप्ट है क्लीयर हो गया होना। इत्थों तुसीं डायग्राम तो भी देख सकते हो। हुण यह भी गल आ गई कि डाटा अबस्ट्रैक्शन नूं अचीव करते हैं जां डाटा हाइडिंग नूं अचीव करते हैं। हुण डाटा अबस्ट्रैक्शन भी आपां देख लीए कि वर्किंग हो किवें रही है, यह आउटसाइड वर्ल्ड तो जां यूज़र तो हाइड है, यूज़र ने सिर्फ यूज़ करना है, बाकी इंटरनली किवें कोड चल रहा है, किवें ट्रांजैक्शनस चल रही ने, ये यूज़र तो हाइड है, ठीक है जी। इनकैप्सुलेशन के नाल एब्सट्रैक्शन भी अचीव होंदी है, डाटा हाइडिंग भी अचीव होंदी है, ठीक है। जिवें डाटा ऑफ एनी सैक्शन लाइक सेल्स फाइनांस अकाउंट्स आर हिडन फ्रॉम एनी अदर सैक्शन, ठीक है। डायरैक्टली नहीं एक्सैस हो सकते। अगर फाइनांस क्लास का कोई ऑब्जैक्ट है, वो डायरैक्टली अकाउंट क्लास का डाटा नहीं यूज़ कर सकता, उन्होंने पहला अकाउंट क्लास के ऑब्जैक्ट के नाल कम्यूनीकेट करना पेगा, ठीक है। मतलब अकाउंट क्लास के ऑब्जैक्ट के नाल ही आपां डाटा अकाउंट क्लास का एक्सैस करके फिर आपां वापस फाइनांस क्लास नूं पास कर सकते हैं फंक्शन के थ्रू, ठीक है जी। उस बाद नैक्सट एब्सट्रैक्शन, ये आपां पढ़ चुके हैं। एब्सट्रैक्शन का कंसैप्ट की है, यूजिंग क्लास, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि we can implement abstraction in C+ using classes. The class help us to group data members and member functions using available access specifiers ਜਿਹੜੇ public protected private है, ठीक है। ਇਹ class can decide which data member will be visible to outside world and which is not, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ नहीं करना, ਇਹ डिपेंड करता अपना जो एक्सैस स्पैसीफायर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पब्लिक कर दें तो आउटसाइड की क्लास भी एक्सैस हो सकते हैं, बट की है कि ऑब्जैक्ट सेम क्लास का होना चाहिए फिर एक्सैस कर सकते हैं। प्राइवेट अगर आप कर दें, ठीक है, तो वो आउटसाइड ऑफ क्लास नहीं एक्सैस हो सकते, ठीक है जी। प्रोटैक्टेड कर दें तो वो सिर्फ ड्राइव्ड क्लास के विच ही एक्सैस हो सकते हैं, ठीक है। यह आप फरदर करांगे। हुण यह कंसैप्ट जिहड़ा दस्सिया कि एब्सट्रैक्शन इन हैडर फाइल्स, हुण इहदे विच किवें दस्सिया कि जिवें तुसीं भी देखिया होना कि मैथ क्लास दे विच अपने कोल अलग अलग फंक्शनस हुंदे आ, स्ट्रिंग क्लास दे विच स्ट्रिंग हैडर फाइल्स दे विच अपने कोल फंक्शनस हुंदे आ कि स्ट्रिंग नूं कनकैटिनेट करना है, कंबाइन करना है, जां स्ट्रिंग नूं रिवर्स करना है, लैंथ फाउंड करनी है, कंपेयरिंग कराउणी है दो स्ट्रिंग्स की, ठीक है। जिवें मैथ क्लास है, मैथ क्लास दे विच अलग अलग फंक्शन ने, पावर कैलकुलेट करन दे, स्केयर रूट कैलकुलेट करन दे, साइन कॉस टैन, इस तरह के फंक्शनस ने, ठीक है। हुण असल च फंक्शन का की कोड है, यूज़र जड़ा है ये बारे नहीं सोच रहा, जां यूज़र नूं ये बारे वरी करन दी लोड़ नहीं है, वो सिर्फ इनू यूज़ कर रहा, ठीक है। यूज़र नूं नहीं पता कि पावर मैं फंक्शन चलाया वा, बट दो वैल्यूज़ पास करती हैं, एक नंबर पास करता, एक मैं वो पावर पास करती है, ठीक है। पर असल जो किवें कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है, इंटरनली किवें वो नंबर की पावर कैलकुलेट हो रही है, यूज़र नूं नहीं पता, वो सिर्फ उन्हें यूज़ कर रहा, ठीक है। इस तरह अगर आप स्ट्रिंग कंपेयर करा रहे हैं, आप सिर्फ strcmp फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग कंपैरिजन, दो स्ट्रिंग्स पास करती हैं, बट आपां नूं नहीं पता कि इंटरनली वो किवें कंपेयर हो रहा, 1 बाय 1 करैक्टर्स फस्ट स्ट्रिंग का लै रहा है, सैकेंड का लै रहा है, उन्होंने कंपेयर कर रहा है, ठीक है। यह आपां नहीं पता यूज़र नूं, ठीक है। यह भी की है एब्सट्रैक्शन है भी यूज़र तो इंटरनल वर्किंग जो हैगी फंक्शन की वो हिडन है, वो सिर्फ उन्हें यूज़ कर रहा, यूज़र नूं नहीं पता भी असल च कैलकुलेशन किवें हो रही है जां आउटपुट किवें आ रही है, यूज़र नूं सिर्फ आउटपुट नाल मतलब है, इंटरनल वर्किंग नाल नहीं, ठीक है। यह हुंदी एब्सट्रैक्शन। नैक्सट जिहड़ा पॉइंट है पॉलीमॉर्फिज्म। हुण पॉलीमॉर्फिज्म जिहड़ा वर्ड है ना, इसदा मतलब हुंदा है मैनी फॉर्म्स, ठीक है। जिद्दां तुसीं देख सकते हो मैनी फॉर्म्स मतलब कंसैप्ट एक है
पर ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਣਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ C++ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਓਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਓਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਇੰਟ a, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ A1 ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਓਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦਾ n ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਲੋਟਿੰਗ ਟਾਈਪ ਦਾ f1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਹੋਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਪਰੇਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਓਪਰੇਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਮ ਮੈਥਡਸ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਮ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ C++ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਕਿ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਟਰ ਹੈ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਓਪਰੇਟਰਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਓਪਰੇਟਰ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਲਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਵੀ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਓਪਰੇਟਰ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਓਵਰਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸਿੰਗ। ਮੈਸੇਜ ਪਾਸਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਊਪਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਲਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਲਸ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਲਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲਸ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਲਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਸੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸਿੰਗ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਡਾਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਥਰੂ ਦੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ P1 ਡੋਟ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਵਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ।
ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਪਰੇਟਰ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਾਊਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।